Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and this is a continuation video of exercise 8.3. So we have done till question number 6 of exercise 8.3. So let's start with question number 7 now. Question number 7 says, Maria invested rupees 8,000 in a business. Okay, so she would be paid interest at 5% per annum. She would be paid interest at 5% per annum, compounded annually. Find first part is the amount credited against her name at the end of second year. The amount credited at her name at the end of second year. So this is the first part. Now what do we mean by this statement, at the end of second year? It means the time is 2 years. At the end of second year means first year complete and second year भी complete उसके end में. It means the time is 2 years. So first we'll write the principal. Principal is 8,000. Okay, and rate is 5% per annum. And we have to find this question. We have to find the interest compounded annually. So rate हो गया 5% per annum and time हो गया 2 years. So we have 2 complete years. हमें annually निकालना है. Direct we will apply the formula. So formula is amount equals to principal 1 plus rate upon 100 to the power n. Okay, where p is the principal, which is 8,000. So amount equals to 8,000. 1 as it is, rate is 5% and time is 2 years. So the amount equals to 8,000. This would be upon 1, so this would be upon 100. So 100 plus 5 to the power 2. Now amount equals to 8,000 into 105 upon 100 into 105 upon 100. Now why I wrote this fraction 2 times? Because we have 105 upon 100 to the power 2. That's why we'll write this fraction 2 times. Raised to the power means, raised to the power 2 means we have to write the term 2 times. Okay. Now 20 से 20 cut, 10 से 10 cut, and this is 520 ones are 105, 5 twos are 10, and 2 fours are 8. So amount equals to 4 into 21 into 105. Okay, so
This is 5 4s are 20 and 4 1s are 4. So 420 into 21. Now 420 into 21 करते हैं. Now 1 zeros are 0, 1 2s are 2, 1 4s are 4. 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 8 2 0. 8 8 2 0 is the amount, and this is the amount for 2 years. अब ये 2 years का हमारे पास amount आ गया, that is 8,820. ठीक है. अब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट में हमें यही कैलकुलेट करना था, the amount credited at her name at the end of सेकेंड ईयर. तो वो हमने अमाउंट जो क्रेडिट हुआ उसके नेम पे वो हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 8,820. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? Children, the second part of this question says the interest for the third year. The interest for third year. Now, the interest for third year means अब हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है. थर्ड ईयर तक का इंटरेस्ट नहीं निकालना चिल्ड्रन, थर्ड ईयर का, ओनली ऑफ थर्ड ईयर. फर्स्ट सेकेंड ईयर का तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, थर्ड ईयर तक का नहीं निकालना. 1 2 3 तीनों साल का एक साथ नहीं निकालना, ओनली थर्ड ईयर. ठीक है. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, स्पेसिफिकली एक ही ईयर का थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमें निकालना है. सो हमने एक टाइप के क्वेश्चंस करे थे, लाइक 2.5 ईयर का हमें टाइम दिया हुआ है. सो 2 इयर्स तो हमने कंपाउंडेड एनुअली से निकाल लिए थे, और फिर जो हाफ ईयर था वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से निकला था, राइट. तो अभी भी हम यही सोच लेते हैं कि हमारा जो 2 ईयर का हमने निकाल दिया अमाउंट, अब वो हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, और हम अब थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. ठीक है. सो अब हम उसके लिए क्या करना है, वी विल राइट हियर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. ओके, वेयर पी इज दी प्रिंसिपल, बट हेयर प्रिंसिपल हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं होगा. प्रिंसिपल वुड बी दी अमाउंट फॉर लास्ट 2 years. वो क्या है, दैट इज 8820 इंटू रेट इज 5%, टाइम इज 1 year अपॉन 100. अब टाइम 1 year क्यों आया चिल्ड्रन? बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ थर्ड ईयर का ही हमें कैलकुलेट करना है. 1 और 2 years का तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ओके. जब हम नॉर्मली वो क्वेश्चन करते थे 2.5 year वाला, तो भी हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइम हाफ ईयर लिखते थे, राइट. सो इसमें भी आर टाइम विल बी 1 year ओनली, बिकॉज अब पूरा थर्ड ईयर का हमें निकालना है इंटरेस्ट. सो दिस इज 10 से 10 का 5 2s are 10 and 2 4 4 1. So simple interest comes out to be 441. So it means फर्स्ट पार्ट का अमाउंट आया था 8820 एंड सिंपली सेकेंड पार्ट का हमारा इंटरेस्ट आया है ₹441. ओके. सो बेसिकली व्हाट वी डिड, हमें पहले पूछा गया था द अमाउंट फॉर द एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मीन्स अमाउंट फॉर 2 years हमें कैलकुलेट करना था, राइट. सो उसमें हमें कंपाउंडेड एनुअली से करना था. सो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया एंड हमने अमाउंट कैलकुलेट किया. नाउ द सेकेंड पार्ट सेज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर, स्पेसिफिकली सिर्फ थर्ड ईयर का ही हमें इंटरेस्ट चाहिए. सो वो हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर देंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके. सो द प्रिंसिपल वुड बी द अमाउंट फॉर द लास्ट 2 years. ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. सिंपल इंटरेस्ट हम जब भी बचे हुए टाइम का कैलकुलेट करते हैं, सो हमारा अमाउंट जो होता है पहले वाला, वही हमारा सेकेंड वाला प्रिंसिपल बन जाता है. ठीक है. एंड रेट एंड टाइम लिख के वी कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. ये स्पेसिफिकली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 441 rupees. ओके. दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.3.
Now after this question we will be starting with question number 9. Sorry, question number 8 of exercise 8.3. So question number 8 says, let's rub this question. Now question number 8 says, find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum, compounded half yearly. Also, the second part of the question says, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually. So the question says, find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. तो हमें अमाउंट एंड इंटरेस्ट निकालना है जो कि जिसमें हमें टाइम गिवन है, हमें रेट गिवन है एंड वी आर गिवन दी प्रिंसिपल ऑल्सो. ओके, बट हमें हाफ ईयरली से निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ओके, बट ऑल्सो would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? So अब हमें annually भी निकाल के चेक करना होगा कि इंटरेस्ट किसका ज़्यादा है, हाफ ईयरली का या फिर एनुअली का. विच इंटरेस्ट इज मोर. ओके, सो बेसिकली इसमें भी हमें बोथ वेज से निकालना है, बट फर्स्ट हम हाफ ईयरली से कैलकुलेट करेंगे, देन विल कैलकुलेट इट बाय कंपाउंडेड एनुअली. सो if we talk about half yearly, so the principal is 10,000, time is 1.5 year and rate is 10% per annum. Now half yearly में हमें two things we have to remember, time double, rate half. Okay, सो टाइम डबल कैसे होगा, वी हैव 1.5 year. सो हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन. 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3, सो 3/2. अब इसको इनटू 2 कर दे बिकॉज टाइम होता है डबल. सो 2 से 2 कर, दिस इज 3 half years. वी हैव 3 half years. Okay, so we have 3 half years and rate would be 10/2, so 5%. अब रेट हो गया 5%, और ये सिर्फ हम हाफ ईयरली में ही करेंगे, एनुअली में ये सब नहीं करना. ठीक है, सो नाउ वी विल अप्लाई दी फॉर्मूला which is amount equals to principal 1 plus rate upon 100 to the power n, where p is the principal which is
10,000. So amount equals to 10,000. 1 plus rate is 5% and time is 3.5 years. So 3. Okay. Now 1 plus 5 upon 100. तो ये हो गया 1 upon 1 and LCM of 1 and 100 would be 100. So amount equals to 10,000 upon 100 कर देंगे. This would be 100 plus 5 to the power 3. Now amount equals to 10,000 into 105 upon 100 into 105 upon 100 into 105 upon 100. Okay, why I wrote this fraction 3 times now? Because it was 100 plus 5 upon 100 to the power 3. Raised to the power 3 means 3 times same fraction. Now 2 0 से 2 0 cut, 2 0 से 2 0 cut. So we have 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0. Now 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 4s are 20. So amount equals to 105 into 21 upon 4. Okay, so अब इससे समझ में आया, ये आंसर आएगा डेसिमल में. ठीक है. सो लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट. नाउ 21 into 21 का स्क्वायर होता है विच वी नो दैट इट इज 441 अपॉन 4. ठीक है. नाउ 105 into 441 करके देखते हैं. 1 5s are 5, 1 0s are 0, 1 1s are 1. ठीक है. 4 5s are 20 to carry. 4 0s are 0 plus 2 2, 4 1s are 4. Now double cross 0 to 4 as it is. So 0 5 3 6 4. So we have 46305 upon 4. Okay. Now we will divide this number by 4. So 46305 divided by 4 करते हैं. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 7s are 28, 4 6s are 24, 1.0, 4 2s are 8, 4 5s are 20. So we have 11,576.25. This is the amount. अब ये तो अमाउंट है हमारा हाफ ईयरली से. हाफ ईयरली से हमारा अमाउंट आ गया 11,576.25. ठीक है. बट हमें इसके बाद इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है. एज यू नो इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया. दिस इज द अमाउंट. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके. अमाउंट है 11,576.25 एंड प्रिंसिपल है 10,000. सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 10,000 from 11,576, what we will get? 1,576.25. This is the compound interest. Now जो ये हमारा हाफ ईयरली था चिल्ड्रन, इससे हमारा अमाउंट भी आ गया एंड इंटरेस्ट भी आ गया. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट बाय कंपाउंडेड एनुअली. अब हमें उससे इंटरेस्ट निकालना है. सो हाफ ईयरली से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया था. राइट. लेट्स राइट द अमाउंट ऑल्सो. सो दिस इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम हाफ ईयरली. ठीक है. अब हम निकालते हैं एनुअली से. ओके.
Now for annually, we have principal same. Principal would be 10,000. Okay. Time would be 1.5 year and rate would be 10% per annum. अब इसमें तो टाइम डबल रेट हाफ नहीं होगा बिकॉज ये एनुअली का क्वेश्चन है, बट वी नो दैट वी वांट कंप्लीट ईयर्स इन दिस क्वेश्चन एंड वी हैव 1 कंप्लीट ईयर एंड 1 हाफ ईयर एज वेल. सो पहले हम 1 कंप्लीट ईयर का कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 ईयर. दैट वुड बी अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 plus rate upon 100 to the power n. Okay. So amount equals to principal is 10,000. 1 as it is, rate is 10% and time is 1 year. क्योंकि अभी हम 1 year का कैलकुलेट कर रहे हैं, right? So this would be upon 1. So amount equals to 10,000 upon 100 हो गया ये. So ये हो गया 100 plus 10, right? To the power 1 ही रह गया. So ये हो गया amount equals to 10,000 into 110 upon 100. ये ऐसे हो गया. Now 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. So ये हो गया 11 and 3 zeros. So amount equals to 11,000. But हमें amount compare नहीं करना. We have to compare the interest, right? और ये तो अभी amount आया हमारा 1 year का. अभी हमें हाफ ईयर का निकालना है बाय सिंपल इंटरेस्ट. नाउ हाफ ईयर के लिए वी हैव सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो अब नाउ द प्रिंसिपल वुड बी नॉट ओरिजिनल प्रिंसिपल. 10,000 नहीं होगा, प्रिंसिपल होगा अब 11,000. सो 11,000 इंटू रेट वुड बी 10%, टाइम वुड बी हाफ ईयर. सो अपॉन 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100. ठीक है. नाउ 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 0. तो ये हो गया 550. सो द अमाउंट फॉर हाफ ईयर इज 550. अब इधर से आया था 11,000, इधर से आया था 550. सो टोटल अमाउंट 11,550. ऑल राइट. बट हमें चाहिए इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट आ गया 11,550 और प्रिंसिपल वी हैव 10,000. सो 1,550, राइट. नाउ अब हम करेंगे कंपेयर. द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन. कौन सा इंटरेस्ट? हाफ ईयरली का इंटरेस्ट, मतलब ये वाला इंटरेस्ट. ठीक है. वुड दिस इंटरेस्ट बी more than the interest he would get if it was compounded annually. अब compounded annually में interest आया 1550 और वैसे हमारे पास है half yearly में 1576. So yes, the answer would be yes. Yes, this interest would be more. So we will write, हमारे पास आंसर आएगा इसके बाद. Let's write it here. Yes, this interest would be more.
और किससे ज्यादा होगा ये, इससे ज्यादा, 1550 से ज्यादा ही है ना 1576.25. So yes, this interest would be more than the interest he would get if it was compounded annually. So basically हमने annually निकाला क्यों, only for the interest. हमें ये चेक करना था कि interest जो है वो हाफ ईयरली के इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा या नहीं, बट वो कम आया. सो इट मीन्स यस, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट ज्यादा है. ओके, so this was our question number 8 of exercise 8.3. यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो लेट मी राइट द एंडिंग स्टेटमेंट अगेन. Let us write this ending statement here. Yes, this interest would be more than the interest. Yes, this interest would be more than the interest he would get if it is compounded annually. I hope now it is clear कि हमारा जो इंटरेस्ट आया हाफ ईयरली से, दैट इज 1576.25, ये ज्यादा है इससे एनुअली से. तो यस, it would be more than the interest he would get if it was compounded annually. Okay, so this was our question number 8 of exercise 8.3. These are a little lengthy questions, so that's why in one video we are discussing only 2 questions. So now question number 9 we will be starting in our next video. Till then, practice all the questions, practice the extra questions as well, and if you have any doubt you can write anytime in our comment section below. I'll definitely reply, and please don't forget to like and share this video. Thank you.